السلام نے یہ فرمایا, عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا, چینی سستی ہو گئی ہو, پتی سستی. ارے بھائی چھوڑ ان باتوں کو, مسلمانوں کو اس وقت کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. تو اسی لیے آپ لوگوں کا دوسرا جمعہ ہے, وقت بھی زیادہ لیا جا رہا ہے. کوئی چانٹا مار دیتا ہے, میں اس کے پورے خاندان سے قطع تعلق ہی کرتا ہوں, اس کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اس سے لڑتا ہوں. کیا وہ مسلمان بچی جو پلیٹ خالی لی ہوئی بھوک کی وجہ سے رو رہی ہے, وہ میری بچی نہیں ہے, آپ کی بچی نہیں ہے. جو خالی بوتل میں پانی تلاش کر رہی ہے, وہ میری اور آپ کی بچی نہیں ہے. وہ جو بہن چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے, اے اللہ قیامت میں تیرے سامنے کھڑی ہوں گی, تیری عدالت لگے گی, نبی علیہ السلام بھی ہوں گے, میرا ہاتھ ہوگا اور ان مسلمانوں کا گربان ہوگا. کہ ہماری یہ حالت دیکھ کر بھی یہ نہیں اٹھے. 8 سال میں نے اس لیے پڑھے ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کر صرف اور صرف فلانا زندہ باد, فلانا زندہ باد یہ نعرے لگاتا رہوں گا. اب کوئی نہیں کروں گا تو مجھے رزق ملے گا, لعنت ہے ایسی بات. اے اللہ پوری زندگی میں شہادت کی تمنا کرتا رہا, میں تیرے میدان سے ایک وقت بھی پیچھے نہیں ہٹا. مجھے جب سے کلمے کی دولت سے تو نے نوازا, میں صرف اور صرف تیرے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد کے اندر تلواریں چلاتا رہا, لیکن مجھے تو نے موت نہ دی. آج اس بستر پر موت دے رہا ہے. پکڑتے ہیں پکڑنے دو. رب کعبہ کی قسم, اگر میں گھر کے اندر کوئی کھڈا بنا کر اس بل میں بھی چھپ جاؤں, اگر میری موت کا وقت مقرر ہے, مجھے وہاں بھی آگے رہے گی. اور اگر میں اس سینے کو میدان جہاد کے اندر جہاد کے لیے اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے, اللہ کا نام روشن کرنے کے لیے, اللہ کے احکامات کی بلندی کے لیے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور قرآن کے احکامات کے لیے میں جہاد کے اندر جاؤں, تیر اور تلواریں, یہ بم اور گولیاں میرے سامنے برس رہی ہوں, اللہ نے نہ چاہا مجھے نہیں. یہ جو سوشل میڈیا پہ اٹھ کر بکواسات کرتے ہیں, ان کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم ان کی باتوں میں نہ آئے, اپنے علماء کا ساتھ دیں, اپنے صلحاء کا ساتھ دیں, اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم اپنی جان سے, اپنے مال سے ان کے شانہ بشانہ رہیں گے. یہ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بتائیں بھائی, انشاءاللہ کیمرہ اس طرف ہے, اس طرف نہیں ہے. انشاءاللہ سب نیت کرتے ہیں, تو یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے. یقین جب اسلام کے نام پر, اللہ کے احکامات کے نام پر, قرآن کے نام پر, دین کے نام پر, اعلاء کلمت اللہ کی سربلندی کے نام پر, مسلمانوں کی جان کی حفاظت کے نام پر, مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت کے نام پر, اپنی بہنوں کی عزت کی حفاظت کے نام پر, اپنی ماں کی آبرو کی حفاظت کے نام پر, اپنے بچوں کی جان کی حفاظت کے نام پر. وہ نعرہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا یہ اشکال تھا, علماء یار اعلان جہاد ہی نہیں کر رہے ہیں. ابھی جب سارا کچھ تباہ ہو گیا, اب اعلان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. آج سے پہلے بھی جہاد ہوتا رہا, جہاد کے نعرے لگتے رہے, جہاد کی طرف بلاتے رہے یہ علماء, لیکن ہم نے ان علماء کے اس بلانے کو دہشت گردی کا نام دیتے رہے. ان مجاہدین کے جہاد کو دہشت گردی کا نام دیتے رہے, ان مجاہدین کو دہشت گرد کہتے رہے. یہ نعرہ علماء نے ہر وقت, ہر دور میں, ہر جگہ, ہر وقت لگاتے رہے ہیں. لیکن آج ہمیں سمجھ آئی تو آج ہم اسے کہتے ہیں کہ یار یہ پہلے نہیں بول رہے تھے, آج فوج نے کہا ہے, فلانے نے کہا ہے, فلانے نے کہا ہے. انا للہ و انا الیہ. ایک شخص آ کر مجھے کہنے لگا جس دن احتجاج تھا, میں کسی پارٹی کی بات نہیں کرتا ہوں, یہ مسلمانوں کی بات ہے. آج سے پہلے بھی میرے کبھی بھی ادھر کوئی ثابت کرا لے کہ کسی پارٹی کے بارے میں بات کی ہو. جو چور کی سزا ہو میری سزا, کیونکہ پارٹی بازی کے اس کے قائل میں خود نہیں, پارٹی بازی یا کسی شخص کے پیچھے صرف چلنے کے قائل نہیں ہوں. لیکن 50 سے 60 ہزار مسلمانوں کو شہید ہوتے ہوئے
हम समझौता कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान के खून पे कोई समझौता नहीं है। ज़बान के जायके की वजह से ये बात है। और एहतिजाज से क्या होगा? आज से पहले जब हम गाड़ियां चला रहे थे, जब मुसलमानों के रिक्शे जला रहे थे, मुसलमानों की दुकानें तोड़ रहे थे, मुसलमानों को खून के साथ लकपक कर रहे थे, मुसलमानों को तकलीफ दे रहे थे, रोडों को बंद कर रहे थे, एम्बुलेंस आ जाती थी, अंदर मरीज होता था, उसे रास्ते नहीं देते थे, मुसलमानों को यहीं पर रोडों पर चला रहे थे, सिर्फ और सिर्फ पार्टीबाजी के चक्कर में, अपने नाम की शोहरत के चक्कर में और किसी एक शख्स के चक्कर में। उस वक्त हमें ये अकल नहीं थी। उस वक्त हम फखर से हमारा पानी नहीं आ रहा, रोड बंद, हमारी बिजली नहीं आ रही, रोड बंद, हमारे पार्टी के किसी सदर को, किसी बड़े को मार दिया, रोड बंद। इन चक्रों में रोड बंद करना फखर समझ रहे थे। आज जब इस्लाम के नाम पर, अल्लाह के अहकामात के नाम पर, कुरान के नाम पर, दीन के नाम पर, इलाही कलिमतुल्लाह की सरबुलंदी के नाम पर, मुसलमानों की जान की हिफाजत के नाम पर, मुसलमानों की इज्जतों की हिफाजत के नाम पर, अपनी बहनों की इज्जत की हिफाजत के नाम पर, अपनी माँ की आबरू की हिफाजत के नाम पर, अपने बच्चों की जान की हिफाजत के नाम पर, अपनी बच्चियों की जान की हिफाजत के नाम पर, उस पर जब निकाला जाता है, हमें ये बात आ जाती है कि यार इससे क्या होगा? इन्ना लिल्लाहि व मेरा दिल भी नहीं चाहता और नहीं चाहता है कि मैं निकल जाऊं। क्यों? बाहर गर्मी है, मेरा दिल नहीं चाहता मैं गर्मी में निकलूं, मेरा दिल नहीं चाहता 500,000 रुपए का पेट्रोल डलवा कर खुद निकलूं, मेरा दिल नहीं चाहता कि उस रश के अंदर मैं फंसा रहूं, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं भी 3 से 4 घंटे वहां पर खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह की और सबीलुना सबीलुना अल जिहाद। मेरा दिल ये नहीं चाहता कि मैं भी अपनी जान को नजराने में पेश करूं, मेरा दिल ये नहीं चाहता कि मैं भी इस कलमे के नाम पर मर मिटूं, लेकिन फिर भी निकलना पड़ेगा। जिसका दिल नहीं चाहता, जो खुद कमजोर है, वो ये नारा लगाता है, क्या फायदा है? और फिर एक और आखिरी बात, गलत, ये उलमा क्यों नहीं निकल रहे? हमारे जो बड़े हैं, एक तो मैं सुन रहा था कि भाई जितनी इसराइल की आवाम है, उतने तो सिर्फ हमारे पाकिस्तान के उलमा है, ये निकले ना जिहाद के लिए। रब्बे काबा की कसम, मैं अकेला आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं अकेला, मेरे पीछे जो आते आए नहीं आ दुनिया में आता। क्या डंडे से जिहाद करेंगे? पत्थरों से करेंगे? हाथों से सिर्फ करेंगे? अगर आपके मदरसे के लिए सिर्फ ये अफवाह फैल जाती है कि इसमें सिर्फ एक गोली है, वो मदरसा सीज हो जाता है, मदरसा बंद हो जाता है। आपके किसी दीनी जमात के बारे में सिर्फ ये पता लग जाता है इससे एक गोली निकली है, उस पर पाबंदी लगी जाती है कि ये कलअदम जमात है, फिर हम निकले। हमने उलमा को दिया क्या है? आपके उलमा की सरकारी तनख्वाहें लगी हुई है और सरकारी अभी ऐलान भी नहीं कर रहे हैं, सरकारी तनख्वाहें हैं, पैसा हमसे आप लो, टैक्स हमसे आप लो, हमारे पाकिस्तान को आप खाओ और फिर हम पे इश्काल। इसके लिए एक अलग जमात पैगंबर अलैहिस्सलाम के दौर से बनी होती थी, एक जमात सीखने सिखाने में लगी होती थी, एक अल्लाह की राह में तशकील में लगी होती थी। तो इसी तरह हम अकल के नाखुन ले, ये जो सोशल मीडिया पे उठकर बकवासात करते हैं, इनके रोकने से कुछ नहीं होता। हम उनकी बातों में ना आए, अपने उलमा का साथ दे, अपने सुलहा का साथ दे, और जहाँ कहीं भी मुसलमानों को जरूरत पड़ेगी, इंशाअल्लाह हम अपनी जान से, अपने माल से उनके शाना बशाना रहेंगे। ये सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह, सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बताएं भाई, इंशाअल्लाह कैमरा इस तरफ है, उस तरफ नहीं है, इंशाअल्लाह सब नियत करते हैं। तो ये डरने की बात नहीं है, यकीन माने। आज तक हम डरते ही रहे, क्या होगा? एक यही जान है, ये भी चली गई, कोई मसला तो नहीं है, एक ही जान है, चलिए
अच्छे खाने के, अच्छे पहनने के, अच्छे लगाने के, अच्छे रहने के आदी हो के हमें मौत से डर लगने लगे। मौत से हमें इतना डर लगता है कि कहीं आके कोई पकड़ न ले। पकड़ते हैं, पकड़ने दो। रब्बे काबा की कसम, अगर मैं घर के अंदर कोई खड्डा बनाकर उस बिल में भी छुप जाऊं, अगर मेरी मौत का वक्त मुकर्रर है, मुझे वहां भी आके रहे। और अगर मैं इस सीने को मैदान जिहाद के अंदर जिहाद के लिए, इलाही कलिमतुल्लाह की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह का नाम रोशन करने के लिए, अल्लाह के अहकामात की बुलंदी के लिए, इलाही कलिमतुल्लाह के लिए और कुरान के अहकामात के लिए मैं जिहाद के अंदर जाऊं, तीर और तलवारें, ये बम और गोलियां मेरे सामने बरस रही हूं, अल्लाह ने न चाहा मुझे नहीं मार सकते। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर एक जगह भी ऐसी नहीं थी जहां तीर और तलवार का जख्म ना हो, नेज़ों के जख्म ना हो, लेकिन आखिरी वक्त में बिस्तर पर लेटे हुए हैं और रो रहे हैं, ए अल्लाह, पूरी जिंदगी मैं शहादत की तमन्ना करता रहा, मैं तेरे मैदान से एक वक्त भी पीछे नहीं हटा। मुझे जब से कलमे की दौलत से तूने नवाजा, मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे कलमे की सरबुलंदी के लिए जिहाद के अंदर तलवारें चलाता रहा, लेकिन मुझे तूने मौत न दी, आज इस बिस्तर पर मौत दे रहा है, रो रहा है। फिर कहा कि अल्लाह, मौत तेरी तरफ से है, मैदान में आए या जहां भी आए, लाज़मी नहीं है कि कोई तलवार उठाकर मैदान में निकलेगा उसे मौत आ जाए। अगर ऐसा होता खालिद बिन वलीद आज बिस्तर पर नहीं मर रहा होता। तो इसीलिए डरना नहीं, डरना नहीं, आगे बढ़ना है। और हमेशा के लिए जब भी मुसलमानों को आज यार 50 से 60 हजार मुसलमानों की शहादत ये कहना आसान है, जिसके घर चले गए हैं, रब्बे काबा की कसम, मैं अपने आप यहाँ बैठता हूँ, कसम से उनकी बात लग जाती है, मैं अपने आप को बड़ा कंट्रोल करता हूँ, रोकता हूँ कि यार ये दिल चल रहा है। कसम से नौजवान अपनी बेटी को हाथ में उठाए हुए शहीद को, एक तो मैंने देखा उसके हाथ नहीं है बच्ची के, मैं पूरा चेहरा ऐसा चांद सा चेहरा है, कसम से जख्मी है, उसे यूं उठाए हुए है और नारे लगा रहा है, कहां है मुसलमान, कहां सोए हुए हो, उठो जागो, क्या ये करते रहोगे, कहीं हम उठ गए फलाने आके हमको पकड़ लेंगे। छोटे छोटे बच्चे आज सुबह में देख रहा हूं, छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चे ने बोतल पकड़ी हुई है हाथ में, खाली बोतल, पानी के लिए भाग रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है उसके पास, खाने के लिए रोटी नहीं है, मैं और आप खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। 5 मिनट का जज्बा इस इस्लाम को और उन मुसलमानों को नहीं चाहिए, हमेशा का जज्बा चाहिए। आज मैंने एक चीज इस्राएली छोड़ी तो दूसरी जो खाने की है वो ले ली। एक मुसलमान को डूब के मरने का मकाम है, जो इस वक्त इस हालात में भी इस्राएली चीजें, इस्राएली प्रोडक्ट, इस्राएली मसनूआत इस्तेमाल कर रहा है, उसको चाहिए कि वो अपने कलमे के बारे में, अपने ईमान के बारे में फिक्र करे। मेरे बच्चे को कोई चांटा मार देता है, मैं उसके पूरे खानदान से कदा ताल्लुक ही करता हूँ, उसके घर के बाहर खड़े होकर उससे लड़ता हूँ। क्या वो मुसलमान बच्ची जो प्लेट खाली ली हुई भूख की वजह से रो रही है, वो मेरी बच्ची नहीं है, आपकी बच्ची नहीं है। जो खाली बोतल में पानी तलाश कर रही है वो मेरी और आपकी बच्ची नहीं है। वो जो बहन चीख चीख कर कह रही है, ए अल्लाह, क़यामत में मैं तेरे सामने खड़ी होंगी, तेरी अदालत लगेगी, नबी अलैहिस्सलाम भी होंगे, मेरा हाथ होगा और इन मुसलमानों का गिरबान होगा। कि हमारी ये हालत देखकर भी ये नहीं उठे, सिर्फ खुद खाते रहे, खुद पीते रहे, खुद ही अपने एसियों में सोते रहे, अपनी गाड़ियों में घूमते रहे। किसी एक ने भी रोड पर निकलकर ये नहीं कहा कि अल्लाह, हम निकल गए हैं, हमारे इंतजाम आप बनाओ, भेजो। और मैं खुद भी तैयार हूँ,
हर मुसलमान को तैयार होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मौत से किसकी यारी, आज मेरी तो कल तेरी बारी। तोहफतुल मुमिनी मौतुन, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन का तोहफा मौत है। और फिर मिंबर पे बैठने वालों की जिम्मेदारी में ये समझता हूँ, उनको भी एक पैगाम, यहाँ से अगर आपको रिस्क की वजह से बैठे हुए छोड़ दो, आपके इल्म का कोई फायदा ही नहीं है। 8 साल मैंने इसलिए पढ़े हैं कि मैं यहाँ बैठकर सिर्फ और सिर्फ फलाना जिंदाबाद ये नारे लगाता रहूंगा, अब कोई नहीं करूंगा तो मुझे रिस्क मिलेगा। लानत है ऐसी बात पर। रिस्क देने वाली जात अल्लाह है, रिस्क देने वाली जात अल्लाह है। यहाँ पर हक बात की जाए। इस वक्त मुसलमानों को नज़ले की गोलियों की जरूरत नहीं है, कैंसर के इलाज की जरूरत है। अब यहाँ बैठकर फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, चीनी सस्ती हो गई है, पत्ती सस्ती। अरे भाई छोड़ इन बातों को, मुसलमानों को इस वक्त खड़े होने की जरूरत है। तो इसीलिए आप लोगों का दूसरा जुम्मा है, वक्त भी ज्यादा लिया जा रहा है। देखिए जो वक्त अल्लाह के लिए दिया है, इंशाअल्लाह कल अल्लाह इस पर जो देगा वो मुझे और आपको फिर पता नहीं है। पता लग जाए, हम कहें कि पूरा दिन रात हम मस्जिद से निकलेंगे ही नहीं। तो इसीलिए इंशाअल्लाह जब भी क्या अभी जरूरत है, अगर जान से जा सकते हैं इंशाअल्लाह निकलेंगे हम, इंशाअल्लाह निकलेंगे हम, हाथ उठाकर इंशाअल्लाह निकलेंगे हम। और माल जितनी जरूरत है इंशाअल्लाह हम देंगे उनको, देंगे इनको। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस इरादे को भी कबूल मंजूर फरमाए और हमें वहां तक किसी तरीके से भी पहुंचाए ताकि हम भी अपनी जान माल वक्त से